Hello, students. Good morning to everyone. VKM India is here. You are welcome in orientation. Poster making is the topic for us to discuss. Poster making is an art. It is a skill to draft a poster for social welfare. Students, before telling about poster, I would like to ask a question. Have you ever seen some posters stuck on the walls or somewhere in your street? Certainly, you might have seen it. But have you ever thought that what is the difference between a poster and a display advertisement? Display advertisement already I have taught you. But poster is light different from display advertisement. Would you like to tell me what is the difference between a poster and a display advertisement? I'm telling. Display advertisement is used for commercial issues to create a demand for a particular product manufactured or made by a particular company. Mostly advertisements are used to create demands in our society. But posters, what is the topic for us to discuss today? Posters are used to create awareness in our society. To create awareness in our society is a particular need of our society which comes time to time. आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है. आज आप चारों तरफ देख रहे होंगे, हर मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट में कोरोना वायरस है. इवन एक सोप का भी अगर कोई एडवर्टीजमेंट है तो उसमें भी कोरोना वायरस है. कोरोना वायरस एक सोशल एविल बन चुका है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट थ्रू आउट वर्ल्ड. और इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है और लड़ने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है. जागरूक करने के बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, बहुत सारे साधन हो सकते हैं. देयर मे बी मेनी मीन्स टू अवेयर पीपल, टू मेक पीपल एक्टिव अगेंस्ट इट. पोस्टर्स भी उनमें से एक है. थ्रू पोस्टर्स वी मेक पीपल अवेयर अबाउट सम सोशल इश्यूज, some social needs and some social problems. Now it is quite clear. Advertisements are used for commercial views, for commercial issues, to develop a demand in our society for a particular product made by a particular company. But posters are of social use. They are used for social welfare. In their formation, in their layout, इनके बनाने के तरीके में विशेष फर्क नहीं होता. जैसे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में एक डिजाइन होती है, जैसे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का पूरा मैटर वेल सिलेक्टेड होता है, जैसे इसकी वर्ड लिमिट होती है, जैसे सेंटेंसेस पर बाउंड्स होते हैं, जैसे वर्ड्स यूजेस पर बाउंड्स होते हैं, ठीक उसी तरह पोस्टर्स की भी अपनी कुछ विधा है. पोस्टर्स के भी अपने कुछ फॉर्मेट्स हैं और पोस्टर्स के भी अपने कुछ तरीके हैं जो हमें अप्लाई करने हैं, जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं जब हम पोस्टर बनाने चलते हैं. पोस्टर इन टोटल, to conclude, if we have to define poster in nutshell, we can say posters are the means of communication, a written communication. It's a short notice to our society to make them aware about some social issues or some social
needs. Is it? Is it clear? Now, some details about posters I'm going to give you, and keep your attention to me. I want to assure you, whichever topic I'm dealing with, if you listen to me carefully, if you see my formats, what I'm giving you on boards, and what material I'm trying to provide for you all people, if you care this all, I think you will be able to do the best. Nobody can be compared. And from my end, I am trying my level best to give the material, the every sort of material in a very easy way, in a very nice way, in a very simple way. So try your best to learn it. So today we will learn poster drafting. पोस्टर ड्राफ्टिंग सीखने से पहले, करने से पहले उसकी कुछ खास बातें आपको जान लेनी है। जैसा कि पहले अभी हमने आपको डेफिनेशन दिया कि पोस्टर मेकिंग और पोस्टर्स आर द यूजफुल मीन्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स and social needs, as I have told you. Then now we have to talk about its uses. Cultural shows. By the way, मान लीजिए हमारे कॉलोनी में, हमारे स्कूल में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कोई एक बड़ा कल्चरल शो होने जा रहा है और उसका प्रचार प्रसार करना है। इसमें हम कुछ बेच नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट की डिमांड हम नहीं करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट की डिमांड हम बढ़ाने नहीं जा रहे हैं मार्केट में। हमारे समाज में, हमारे समाज की भलाई के लिए, समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई हमारे पास एक सोशल प्रोग्राम है, एक कोई कल्चरल एक्टिविटी है जो हम शो करने जा रहे हैं, और उसके प्रचार प्रसार के लिए हमने कुछ पोस्टर्स बनवा दिए और समाज में बंटवा दिए, ताकि लोग जान सके कि अमुक डेट पर, अमुक दिन पर, or on this day, at that time, at this place, the such event is going to happen. So, any program की नोटिस के लिए, उस प्रोग्राम के डिटेल के साथ अगर हमें जनता को जागरूक करना है, जनता को बताना है, तो हम पोस्टर्स का सहारा लेते हैं। सो कल्चरल शोज, एग्जीबिशंस, कोई एग्जीबिशन हम लगाने जा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार करना है, लोगों के बारे में, लोगों को उसके बारे में डिटेल बतानी है। कोई सेमिनार्स हैं, सम सेमिनार्स वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और सम वर्कशॉप्स हैं, और सम फेयर्स हैं, फेट्स हैं, और कोई स्टूडेंट्स एक्टिविटी है। खासतौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पोस्टर्स का बहुत इस्तेमाल करती हैं। अगर उनके घर में कोई, उनके कैंपस में कोई आई चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई बास्केटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किसी बहुत बड़े एकेडमिक का कोई स्पीच, सेमिनार, वर्कशॉप अरेंज होने जा रहा है, और अगर मास पब्लिक को हमें सूचना देनी है तो थ्रू पोस्टर्स वी कैन इनवाइट देम, वी कैन मेक देम अवेयर अबाउट इट। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बनाने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा, जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा, जिन्हें हमें हमेशा अपने जेहन में रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इट मीन्स while drafting a poster, we have to care these major facts, these major points, and those points are there. Eye catching, सबसे पहली बात, उसका लेआउट जो होना चाहिए वो आई कैचिंग होना चाहिए। पोस्टर दिखाया नहीं जाता, पोस्टर दिख जाता है। हमें उसका लेआउट, हमें उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि वो पोस्टर हमें दिखाने की जरूरत ना पड़े, लोगों की निगाह उस पर पड़ जाए। अर्थात पोस्टर्स का लेआउट जो होना चाहिए वो आई कैचिंग होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बिगर, बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स का मैक्सिमम इस्तेमाल होना चाहिए। उस पोस्टर में जो हम स्क्रिप्ट देंगे, जो उसमें हम मैटर देंगे, वो थ्रू वर्ड्स देंगे, थ्रू सेंटेंसेस देंगे, थ्रू पंचेस देंगे, थ्रू फ्रेजेस देंगे और थ्रू स्लोगन्स देंगे। तो उस परिस्थिति में ये जो भी मैटर लिखे जाएं,
वो बोल्ड लेटर में लिखे जाएं, साफ साफ लिखे जाएं, ज्यादा मैटर न भर दिया जाए। पोस्टर्स पढ़ने की चीज नहीं होती है, पोस्टर्स देखने की चीज होती है। आप कल्पना करो कि एक पोस्टर का लेआउट आपने लिया और उसमें पूरी एक चिट्ठी लिख डाली, पूरा 2 पेज आपने उसमें लिख डाला, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ पोस्टर, दैट इज नॉट अ पोस्टर, दैट माइट बी अ लेटर, एंड पीपल हैव नो टाइम टू गो थ्रू योर लेटर इन डिटेल। सो हमें मेजर फैक्ट्स लेने हैं, हमें बुलेट पॉइंट्स लेने हैं और उसे हाईलाइटेड मैनर में लिखना है। तो देन बोल्ड, कैपिटल लेटर्स एंड बिगर वर्ड्स मीन्स हाईलाइटेड वर्ड्स वी हैव टू यूज। नॉट एक्स्ट्रा एंड इरेलीवेंट मैटर्स, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जब हम पोस्टर ड्राफ्ट करें तो उस पोस्टर में बहुत ज्यादा इरेलीवेंट मैटर, बात चल रही है क्रिकेट टूर्नामेंट की, और उसमें हम एक एक प्लेयर्स की बायोग्राफी डालने लगे कि हमारे इस टूर्नामेंट में ये प्लेयर आने जा रहा है और ये पिछले 5 साल से इस टीम में खेला है और यहाँ ये खेला है, तो पूरा का पूरा पोस्टर जो होगा वो मैटर से बहुत ज्यादा भर जाएगा, ये इररेलेवेंट मैटर होगा। पोस्टर में सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करनी है, उसके डेट की बात करनी है, उसके टाइम की बात करनी है, उसमें कितने टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, कब से कब हो रहा है, ये किस डेट से किस डेट तक चलेगा, उसका सेमीफाइनल कब होगा, उसका क्वार्टर फाइनल कब होगा और उसका फाइनल कब होगा, फाइनल में कौन चीफ गेस्ट होंगे। अगर इस तरह के बुलेट पॉइंट्स अगर आप पोस्टर्स में देते हो और हाईलाइटेड मैनर में देते हो तो दैट विल बी रेलिवेंट। सो अपने लेआउट में, अपने पोस्टर में कभी भी इररेलेवेंट और एक्स्ट्रा मैटर नहीं देना है, एकदम बुलेट मैटर्स देने हैं आपको, एकदम सिलेक्टेड मैटर्स देने हैं, जो एकदम जरूरी है देने के लिए सिर्फ वही देना। इसके बाद एक्स्ट्रा और इररिलेवेंट मैटर्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ फ्रेजेस, कहते हैं कि बात बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में जितनी अच्छे से नहीं कही जा सकती, कम शब्दों में पंचेस के माध्यम से, फ्रेजेस के माध्यम से आसानी से कहा जा सकता है। सो दे वी हैव टू यूज फ्रेजेस, स्लोगन्स एंड टू मेक योर पोस्टर विजुअल, टू क्रिएट विजुअलिटी इन योर पोस्टर। कुछ फोटोग्राफ्स दे सकते हैं, कुछ स्केचेस दे सकते हैं। इफ यू आर एट होम इन, अगर आप ट्रेंड हैं स्केच करने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, अगर फोटोज बना सकते हैं आप, तो यू कैन ऐड। और अगर आप बहुत उसमें दक्ष नहीं है, बहुत कैपिटल हैंड नहीं है, इफ यू हैव लिटिल नॉलेज अबाउट इट, डोंट गो टू डू इट, अदरवाइज यू विल किल मच मोर टाइम देयर। बढ़िया बनेगा भी नहीं और ज्यादा से ज्यादा समय खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, अगर आप स्केच बना लेते हैं तब तो फोटोग्राफ्स डालिए, अदरवाइज स्लोगन्स और फ्रेजेस के माध्यम से आप अपना काम चला लीजिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। टू कंक्लूड ओवरऑल, अभी तक मैं जितना बोला हूं सिर्फ ये बोला हूं कि पोस्टर जो है वो दैट इज अ मीन्स टू क्रिएट अवेयरनेस इन आवर सोसाइटी अबाउट सम सोशल इश्यूज, सम सोशल इवेंट्स, some social programs, some students activity or some social causes. To make a poster, we have to care, it must be eye-catching, letters must be bold, highlighted, then extra and irrelevant matters should not be added there. And next and last I am telling, phrases must be used, slogans must be used, and if you know well how to sketch, you should add visuals, photographs. Otherwise, through matters you will explain your poster. Now this is the time to discuss a specimen of a poster. I am also not very much at home in स्केचेस, मेरे भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, व्हाट आई कैन, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू फॉर यू, ओनली टू मेक यू लर्न। आपको सिखाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, और अगर कोशिश मेरी सार्थक हो रही है तो देन कम ऑन।
एक टॉपिक है आज दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है, वाटर, पानी। अभी गर्मी आ रही है, जून जुलाई आते आते देश के तमाम हिस्सों में पानी की किल्लत हो जाएगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा। लोग किलोमीटर्स तक पैदल जाके लाइन में खड़े होते हैं और उस समय यह स्थिति देखकर बड़ा कष्ट होता है। तो एक कंपेन चलती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज एक कंपेन चल रही है, सेव वाटर, पानी बचाओ। पीने का पानी, इट इज वेरी मच स्कार्स, इट्स अ बिग scarcity of drinking water on the earth, so we have to save it. Without water nobody can survive, so for our survival we have to conserve water, we have to preserve water, we have to save water. यही मैसेज सोसाइटी को देना है और इसी मैसेज के लिए सोसाइटी को अवेयर करना है। और इसी थीम को लेकर, इसी मैटर को लेकर एक पोस्टर हमने डिजाइन किया है। यहां सबसे पहले ऊपर देखिए, सेव वाटर सेव लाइफ। ये हमारा एक कैची टाइटल है, ये हमारे पोस्टर का एक कैची टाइटल है। कैची टाइटल का मतलब इतना बोल्ड है, इतने बड़े बड़े लेटर्स हैं दैट naturally it will be seen, it will be caught, you will be attracted to see it. So एक टाइटल होना चाहिए जो कैची होना चाहिए अगर आप पोस्टर ड्राफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद वाटर इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ये हमारा एक स्लोगन है। हमने यहां लिखा है, ये स्लोगन है, ये कैची टाइटल है। देयर मस्ट बी अ कैची टाइटल फर्स्ट, देन देयर शुड बी अ स्लोगन। स्लोगन यू हैव टू क्रिएट, slogan can be created, so slogan can be taken from other sources too, no problem। कोई जरूरी कि वो आपका अपना बनाया हुआ हो, किसी और का भी स्लोगन आप यूज कर सकते हैं इसमें। सो फर्स्ट पॉइंट कैची टाइटल, द सेकेंड पॉइंट स्लोगन, एंड थर्ड वाटर लेवल गोइंग लो। दिस इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को इंडिकेट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली ईयर बाय ईयर, साल दर साल पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है, नीचे चलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। द सच इशू इज अ मैटर टू मेक पीपल अवेयर। लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को सतर्क और सजग करने की जरूरत है इस प्रॉब्लम से। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। एक आपके in your poster, the real problem, this is the problem, this is the issue, you can say not problem, this is the real issue. Issue should also be discussed in your poster, and then after this is a complete detail. Now apply rainwater harvesting. आपने टाइटल दिया, आपने स्लोगन दिया, आपने इश्यू दिया, अब इश्यू का समाधान क्या है ये भी देना है। पोस्टर में केवल सतर्क नहीं करना है आपको कि भागो भागो बंदर आ रहा है। अब भागो भागो बंदर आ रहा है तो कहां भागो, क्या करो, आपको सोल्यूशन भी देना। इफ प्रॉब्लम इज देयर, you have to show, you have to put the proper solution too. So problem, आई कैची टाइटल दिया आपने, स्लोगन दिया आपने, इश्यू दिया आपने, और इश्यू का एक अपना सोल्यूशन भी दे रहे हैं। और सोल्यूशन है अप्लाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट। बरसात का पानी, वर्षा का पानी बर्बाद मत होने दीजिए। प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तालाब में और टंकी बनवा के इस पानी को प्रिजर्व करें, इसे सुरक्षित रखें, इसे संरक्षित करें। एंड सेव दिस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर कमिंग जनरेशन। आने वाली जनरेशन के लिए ये नेचर का जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, इसे बचाने की कोशिश करें। ये आपका मैसेज है, ये पोस्टर का मैसेज है। आप ध्यान दीजिए, इसको मैं स्पीड कर रहा हूं। Water level going low dangerously year by year, this is the issue. Now apply rainwater harvesting. Don't let rainwater run waste. Preserve it in tanks and ponds and save this gift of nature for coming generation. This line is a message.
this line is a message, and this message you have to care. Then for visual, raindrops, water drops, I have made it as I can. जैसा मैं कर सकता हूं वैसा मैंने करने की कोशिश की है. ये वाटर ड्रॉप है. वाटर ड्रॉप यहां बड़ा है, यहां छोटा है और छोटा होता जा रहा है. पानी के बूंद भी धीरे धीरे छोटे हो जा रहे हैं. दिस इज द थीम. पानी कम होता जा रहा है और दिस इज द विजुअल. और लास्ट में एक चीज आपके पोस्टर में जरूर होना चाहिए, इशूड बाय. यह पोस्टर किसने जारी किया है, किस संस्था ने जारी किया है. ये कोई सामान्यतया कोई व्यक्ति जारी नहीं करता, कोई संस्था जारी करती है, कोई सोसाइटी जारी करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है. तो पोस्टर में इशूड बाय जरूर होना चाहिए और पोस्टर में टाइटल होना चाहिए, इश्यू होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए एंड एट लास्ट इशूड बाय जरूर होना चाहिए. सर्टेनली I think you have got the detail about poster and poster drafting. It is said that what you see concept gets clear, but until unless you go to frame out any poster, it is not possible to be at home and to be confident that you can do it. तो आपको हमने ये पढ़ा दिया, हमने आपको ये सिखा दिया और अब आपकी जिम्मेदारी है कि वंस यू गो थ्रू एंड यू शुड सिलेक्ट अ टॉपिक एंड यू शुड मेक अ पोस्टर एंड दैट पोस्टर must be checked by your teacher, and if some errors are there, if some shortcomings are there, they should be taken out, they should be pointed out. So I would like to give you a topic to make a poster. Stop child labor. Child labor. Stop child labor is the topic to make you. Nowadays, many of the children are losing their childhood and they have no way, they have no any opportunity to go to school, to make their life secure, to make their life bright. Their future is in dark. So to save their life, giving a message to the society that it is a child labor is a social evil, and to stop it you have to make public aware, you have to make society aware, and for the same you have to create a poster. Creating this poster, get a snap of it and please attach your poster to the comment box if it is possible. I think this poster making video may be very interesting and may be very clear for you, and it will help you a lot, as I think. And if it is so, I would like to request to forward and to share this video, like this video, and subscribe this channel too. Thank you very much.